So we can move with both Hindi and English. Maximum part with Hindi. Fine. English we can go with. Yeah. Bharat sir, it's recording start हो गई ना इसकी? Yeah. So I would be requesting तब तक you can open your mic for थोड़ा time. ठीक है? You can share कि are you a qualifier? You are giving qualifier या फिर you are giving a quiz to exams. You can comment it down also. You can speak from your mic also in which you are comfortable. I guess maximum participants are from quiz 2. Like सभी के मैसेज जो भी मैं I can see case it's from quiz 2. We have we have a reaction panel from where you can go with thumbs up and thumbs down. ठीक है? Few things I will be saying with you all कि अगर कहीं पर को कुछ समझ नहीं आता है तो you can simply raise your hand. माइक ओपन करने से पहले you will be raising your hands. ठीक है? कमेंट में मत पूछ, कमेंट में you can go with that, बट मेरे को एक बार प्लीज बता देना कि you are asking the doubts in your comment box. You have raised the issue in comment box. ठीक है? Because while I will be teaching थोड़ा सा if I'm going to uh, I'm going तो it will be difficult for me कि मैं आपका comment box थोड़ा देख पाऊँ. ठीक है? तो for that we are moving with कि we will be you can raise your hands. ठीक है? You can raise up your hand, raise down. ठीक है? Fine, fine for all ना? Hello. Yeah, Bharat sir, can we start? Recording start है ना? So I would be requesting everyone. So guys, give your 2 hours today. 7:30 to 9 or 9:30 we are going to move. Fine. I would be requesting stay connected. If you will be feed bored, तो बता देना बीच में भी. ठीक है, वो भी देख लेंगे. So starting with things कि hello guys, myself Karthik this side and I'm currently in diploma level. Fine. Moving into my profile, I'm currently working as a software developer. Also, I have experience of 3.5 years in the field and mentored 500 students in previous month. Fine. So this is about my profile. So you can reach out me at my LinkedIn also. You can see it my LinkedIn also. Sorry, मेरा थोड़ा network issue is going on. Yeah. ठीक है. So moving, this is my profile. This is kind of thing. So moving into the topics, if you are all from quiz 2, ठीक है, तो quiz 2 you are from, तो in computational thinking, if we see कि quiz 2 में भाई क्या क्या चीजें आती हैं, तो maximum part will be from week 4 to week 8. Fine. Week 4 to week 8, it will be covering 60% of your syllabus, 60 to 70% of your syllabus. And week 1 से लेके 4 तक it's kind of simple, जो कि comes in a very less amount. सभी को समझ में आ रही है guys? Like we have 18 members, so I would be requesting guys thumbs up थोड़ा to make the session interactive. ठीक है, तो you can go with the thumbs up also. Yeah, thank you. IIT MBS community. गलती से हो गया वो. अरे सर कोई दिक्कत नहीं. तो मूविंग इनटू वीक 1. ठीक है, तो whole thing for today lecture what we are going to do, we will be covering from week 1 to week 8. ठीक है, पहले के जो 4 वीक्स हैं वीक 1 to 4 वी विल बी कवरिंग इन अ शॉर्ट मैनर कि भाई ऊपर ऊपर से देखेंगे जिससे कि योर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स विल बी रिवाइज्ड. ठीक है. मूविंग इनटू वीक 4, लाइक वीक 5 से अगर हम ऊपर को बढ़ते हैं तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ काइंड ऑफ कंटेंट जो कि आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वीक 5, 6, 7, 8. ठीक है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. फाइन. तो मूविंग इनटू वीक 1 में द फर्स्ट टॉपिक कम्स फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन गाइस? द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव वी हैव टू मेक. तो यू कैन सिंपली ओपन योर माइक ऑल्सो अभी के लिए. ठीक है, नो नीड टू काइंड ऑफ शाय और जो भी थिंग्स है.
You can explain the thing what is a flow chart. A question for you. किसी को नहीं पता क्या? हेलो, what is a flow chart? Yeah, what is a algorithm? I think it's a series of instructions. Yeah, fine. Thank you. Thank you, Shivendra. Like this I'm doing for only थोड़ा interactive बने and your concept थोड़ा revise हो, ठीक है? तो you can join us kind of thing कि आप लोग बढ़िया से answer कर सकते हो. So if I'm going to the flow chart is a kind of graphical representation of a algorithm. अब आप बोलोगे कि भाई ये algorithms क्या क्या होती है? Algorithm क्या होती है? ठीक है? लेट सपोज यू आर ईटिंग फूड, तो आपके घर पे जो खाना बन रहा होगा तो उस पे इट्स काइंड ऑफ, पहले आप गए होगे, मार्केट गए होगे, वहां से सब्जी लाए होगे, फिर सब्जी काटी होगी, यू हैव कट डाउन वेजिटेबल्स एंड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो इट कम्स अंडर द एल्गोरिदम्स, ठीक है? इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि आपके कोड को बताती है कि कैसे उसको करना है. उसके अंदर आता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज अ काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट योर फ्लो, कि आप कोई काम को कैसे कर रहे हो, ठीक है? उसके बहुत सारे शेप्स होते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडीज कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है एंड हाउ टू वर्क ऑन द फ्लो चार्ट, ठीक है? प्रोग्रामिंग में वी यूजुअली यूज फ्लो चार्ट्स टू रिप्रेजेंट. लेट सपोज सबको प्रोग्रामिंग लिखनी नहीं आती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अब वैसे क्वेश्चन नहीं है. द थिंग इज कि सबको लिखनी नहीं आती, बट कोड को समझना है. लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपको फ्लो बनाना पड़ेगा. पहले स्टार्ट करोगे प्रोग्राम, देन यू हैव टू टेक ए इंटीजर ए, देन यू हैव टू टेक ए इंटीजर बी, ठीक है? आई गेस सभी को पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स, ये चीज तो सबकी क्लियरिफाइड है. हेलो. या. Yes, yes, bro. या फाइन, थैंक यू. ठीक है, तो किसी भी चीज को इन टू रिप्रेजेंट इन ए काइंड ऑफ फ्लोज और ए फ्लो चार्ट्स, ठीक है? इसके वी हैव बहुत सारे सिंबल्स और डायग्राम्स वी आर गोइंग टू स्टडी. पहला इज टर्मिनल. पहली चीज को हम कहते हैं टर्मिनल और ए स्टार्ट बटन, ठीक है? इन ओपीपी वन ऑल्सो यू वर लाइक कि आप लोगों का फ्लो चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है? दिस इज ओवल शेप्ड प्रोग्राम, नहीं, ओवल शेप होता है इसका, ठीक है? विच इज यूज टू स्टार्ट, अगर आपको कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है फॉर स्टार्टिंग, ठीक है? लेट सपोज आपको कोई स्टार्ट करना है प्रोग्राम, तो आप स्टार्ट लिखोगे या फिर स्टॉप लिखोगे एट द एंड. तो यहाँ पर को एस नेम वाले जितने होते हैं ना, एस नेम वाले ओवल शेप में आते हैं. फाइन, इतना सा ध्यान रख लो. दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट मेथड. फॉलोइंग विथ टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक पीवाईक्यू एक सॉल्व करेंगे, इन विच आई विल बी गोइंग थ्रू सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आप अपने क्विज में यूज कर सकते हो, ठीक है? नाउ मूविंग टू द सेकंड वाला, इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेललोग्राम सबको पता है कि कैसा होता है, ठीक है? लेट सपोज हमने यहाँ पर को लिखा, एक सेकेंड, हमने इसके अंदर लिखा स्टार्ट, ठीक है? START, ठीक है? ये आपने स्टार्ट के लिए, स्टार्ट या स्टॉप के लिए यूज होता है. अब ये किसके लिए यूज होता है? लाइक वी वर डिस्कसिंग ए प्रोग्राम ऑफ एडिंग टू नंबर्स, ठीक है? इनपुट लेना पड़ेगा n इज इक्वल टू INT या फिर INPUT A, ठीक है? n को हमने एक इनपुट ले लिया जो कि हमारा इसके अंदर आएगा, ठीक है? इनपुट के अंदर. ये चीज सबको समझ में आ रही है? फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, गाइस? Yes, yes. हाँ, तो ठीक है. तो फॉर द इनपुट एंड आउटपुट वी यूज पैरेललोग्राम. मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के लिए व्हाट वी यूज? प्रोसेसिंग के लिए फॉर एडिंग. लाइक जब हमने बोला कि वी आर यूजिंग ए प्रोग्राम, कि भाई हमें प्रोग्राम लिखना है टू ऐड टू नंबर्स, तो एडिशन की प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे? हियर इन दिस पैरेललोग्राम यू हैव यूज्ड इन फॉर इनपुट, ठीक है? आउटपुट के लिए भी आप यही यूज करोगे. एंड मूविंग इनटू द सेकंड, प्रोसेसिंग. लाइक इनपुट तो ले लिया, इनपुट के बाद करे तो करे क्या? ऐड करना है. तो हियर वी विल बी राइटिंग m प्लस n, ठीक है? तो फॉर द इनपुट वी यूज रेक्टेंगुलर. इज इट फाइन फॉर एवरीवन? अब आता है डायमंड शेप, ठीक है? नाउ मूविंग इनटू डायमंड शेप. डायमंड शेप क्या वो दिखाता है? डायमंड शेप इज लाइक काइंड ऑफ डिसीजन.
आपने इनपुट ले लिया, इनपुट के बाद आपने जो भी उसमें काइंड ऑफ प्रोसेसिंग करनी थी वो कर ली। नाउ मूविंग इनटू आउटपुट। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद आपने इनपुट आपका, इट इट विल बी लाइक कि 23rd को यू विल बी गिविंग इनपुट एंड आउटपुट कुछ दिनों बाद आएगा, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन आपका वहीं पर होगा, आउटपुट कभी आएगा। तो डिसीजन के लिए वी यूज डायमंड वाला बटन। डायमंड, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चेक करना है कि नंबर, लेट सपोज हमने ऐड करना है 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर डिसीजन डाल सकते हैं कि भाई ऐड तो कर दिया, बट व्हाट द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 से बड़ा होगा तो इट विल बी गोइंग इनटू नेक्स्ट। ठीक है, आई विल बी शोइंग इन क्वेश्चन। अब आते हैं कनेक्टर्स और फ्लो लाइंस। इन सबको कनेक्ट करने के लिए वी यूज फ्लो लाइंस। ये सभी को पता होगा कि फ्लो लाइंस क्या क्या, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइन, छोटी सी लाइन होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखो, और जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स को ऐड करना बताया। ठीक है, एक बार इसको चेक करना, यहाँ पर को हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, पहले वी हैव स्टार्टेड इट, देन वी हैव टेकन ए इनपुट, एक पैरेललोग्राम में काइंड ऑफ हमने उसमें इनपुट लिया, फिर उसके बाद दूसरा इनपुट है कनेक्टेड विथ एरोज। ठीक है, ये आपको काइंड ऑफ, इसमें आपने कोई कोड लिखा ही नहीं। फाइन, इसमें आपने कोई कोड लिखा ही नहीं है, और इट्स काइंड ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये आती है डिसीजन वाला बॉक्स। डिसीजन, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो वो जाएगा ट्रू में, अगर नहीं है तो वो इट विल गो इन फॉल्स और डिस्प्ले करेगा num2। num2 इज बेसिकली पैरेललोग्राम वाले बॉक्स में। इज दैट फाइन? कनेक्टर बीच में जो कि सबको कनेक्ट कर रहा है, लाइक लेफ्ट वाली चीज को भी कनेक्ट, इट इज गोइंग टू कनेक्ट इट, और फ्रॉम राइट वाला भी चीज इट इज गोइंग टू कनेक्ट। इज दैट फाइन? सभी को फ्लो चार्ट समझ में आया गाइस? Yes, bro. भैया मतलब फ्लो चार्ट एक रफ प्रेजेंटेशन है कि हमें कोड क्या करना है, मतलब ओवरऑल। 100%। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके घर में सब्जी बनती होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जी आती होगी, उसके बाद वो कटती हो, उसके बाद वो धुलती होगी, फिर कटती होगी, फिर गैस में रखते होंगे। ठीक है, उसके बाद वो पकती होगी। ठीक है, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सभी से, जो भी स्टडी कर रहे हो, टेक ए रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ा यू विल बी गेटिंग थोड़ा इन्हें काइंड ऑफ बढ़िया से वे समझ में आएगी वो चीज। ठीक है, हाँ भैया। नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? किसी को पता है, पता डेटा टाइप? राइट, आप आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कोई एक्सप्लेन करे डेटा टाइप क्या होता है, क्या समझते हो आप डेटा टाइप से? आई थिंक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग्स, जो डबल कोट्स में होता है, फिर इंटीजर, देन बूलियन जो सिर्फ बाइनरी वैल्यूज करता है, ट्रू एंड फॉल्स। 100%, थैंक यू। ठीक है, तो डेटा टाइप से देखो, उसके मीनिंग से ही समझ जाओ। डेटा, डेटा का टाइप, डेटा टाइप मीनिंग you can easily understand from it data, the values which are representing your data. For example, it can be a characters, for example a b c d up to z. ठीक है, it can be a integers will be numbers, for example 1 to 10 or 1 to infinity. देन थर्ड विल बी बुलियन। बुलियन में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बुलियन इज अ काइंड ऑफ वे जो कि ट्रू और फॉल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेक श्योर, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, जो आप देख रहे हो उसको आप लिखते भी जाओ, एक शॉर्ट नोट्स यू कैन गो विद दैट। ठीक है, अब जो ये तीन चीज बोली मैंने, द थ्री थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, तो इसके सब टाइप्स होते हैं। देयर आर फ्यू सब टाइप। इंटीजर्स के अंदर कुछ भी नेम आ सकता है। लेट्स सपोज डेट आ रही है, ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं, क्वांटिटी आ रही है, रैंक आ रही है। कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या डाल सकते हो आप? जेंडर डाल सकते हो। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आते हैं। तो ये चीजें आपको बढ़िया से देखनी है। ठीक है, और ये इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी थिंग, जो कि हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा वीक 1 कंक्लूड होता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये लिस्ट तो छूट गया,
तो लिस्ट आपका आएगा वीक नंबर 5 में, जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट इट एंड हाउ टू वर्क ऑन। इज दैट फाइन? वीक 1 आपका क्लियर हो गया आई गेस। thumbs up guys अगर या योर syllabus is from week 1 to 8। ठीक है, अब इसमें या आ जाए। अजय एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क। ठीक है, अब ये है फ्लो Yes, चार्ट। yes, network problem. फाइन श्योर। ठीक है, तो इन वीक 2 नाउ मूविंग इनटू वीक 2। वीक 2 में क्या चीज़ है? वीक 2 में इट्स काइंड ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टर क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाट इज ए फिल्टरिंग? किसी भी चीज को फिल्टर आउट करना, लाइक किसी भी चीज के अंदर से कुछ यूनिक एलिमेंट्स को निकालना जो कि स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको वी यूजुअली से फिल्टरिंग। फाइन। नाउ मूविंग इनटू इटरेशन। इटरेशन किसी को पता है क्या होता है? आर यू गाइस फ्रॉम किसी की 12th में सीएस थी, कंप्यूटर साइंस थी, पाइथन? यू कैन रेज योर हैंड्स अगर थी तो, जिसकी भी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मूविंग इनटू इटरेशंस। इटरेशन क्या होता है? इटरेशन मीन्स रिपीटिंग ए प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स। कोई भी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम करने का मतलब होता है इटरेशन। रिपीटिंग ए प्रोसेस और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम until the condition is met। ठीक है, द डेफिनेशन विल बी नॉट बी आस्क्ड, बट इतना है कि पता होना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर इन योर सेकेंड टर्म इफ यू आर टेकिंग पाइथन, तो पाइथन में दीज थिंग्स आर आस्क्ड एंड दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट देयर। ठीक है, तो वीक 2 में ज्यादा कुछ है नहीं। इट इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। नहीं है, जो भी फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को कैसे पढ़ते हैं वो मैंने आपको अभी आई हैव एक्सप्लेन यू। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आता है तो यू कैन सिंपली रीच आउट मी। आई विल बी शेयरिंग यू माई लिंक्डइन। ठीक है, वहाँ रीच आउट कर सकते हो मेरे को। नाउ इट्स की, ठीक है, इसमें ये चीज़ है। नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट, ये इसने पूरा एक्सप्लेनेशन बता रखा है। ठीक है, everything is explained here कि how the function is working। there is an example of maths marks जो कि यहाँ पर को उसने रिप्रेजेंट किया है। now moving into week 3। I'm moving थोड़ा फास्ट इन वीक 1 2 3 4 बिकॉज इसका परसेंटेज काइंड ऑफ वेरी लेस, जो कि आपसे वहां पर को पूछा जाएगा। इफ यू आर ए क्वालिफायर स्टूडेंट तब तो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, बट इफ यू आर ए क्विज टू स्टूडेंट तो आपसे इट्स काइंड ऑफ मोर देन 20% भी आ जाए बहुत है, क्योंकि है नहीं कुछ। मूविंग इनटू नेक्स्ट, प्रोसीजर्स क्या होता है? व्हाट आर प्रोसीजर्स? if you can see, a procedure is a block of organized that code that is used to perform single related actions। ठीक है, प्रोसीजर किसी भी काम को करने का जो भी ढंग कह सकते हो आप, या जो भी काइंड ऑफ ट्रिक्स कह सकते हो, या फिर द थिंग्स यू आर यूजिंग टू डू ए वर्क, उसको हम प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट असाइनमेंट, फर्स्टली यू गो टेक पेन, ओपन योर नोटबुक, तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसीजर जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। फाइन। क्रिएटिंग ए टेबल, yeah, I will be including, we will be doing the sample question papers also, which will represent the pseudocode, and I will be sharing you all the tricks there। ठीक है, तो इतना ही द मेन थिंग्स आर की, इतना ही चीज आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आपका 1 to वीक 4 में है। ठीक है, अगर इसके बीच में किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन सिंपली, आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स, कोई पूछ सकता है, पूछ लीजिए। देन वी आर मूविंग थोड़ा डिटेल में वीक 5 6 7 8। अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली डू थम्स अप।
या फाइन, मूविंग अहेड। वीक नंबर 5, वीक नंबर 5 में सब लोग, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज एक कॉपी खोल लेना और यू हैव टू ओपन ए नोटबुक और ए नोट पैड जहाँ पर को यू कैन राइट ए सिंपल थिंग्स लाइक इम्पोर्टेंट एंड द सिंपल थिंग्स। इज दैट फाइन? मूविंग इनटू वीक 5 में कलेक्शन एंड लिस्ट, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में छोड़ा था, फर्स्ट उसमें छोड़ा था कि लिस्ट क्या चीज होती है। व्हाट इज ए कलेक्शन? कलेक्शन इज ए काइंड ऑफ कंटेनर जो कि आपके मल्टीपल डेटा को होल्ड करता है, विच यूजुअली होल्ड्स मल्टीपल डेटा, इज नोन एज कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल हम आपके स्कूल पे चलते हैं, लेट अस इमेजिन आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 40 के एवरेज होंगे, 40 to 60, ठीक है, उन सब का वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम स्कूल, तो इट्स ए काइंड ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन इज कलेक्शन इज ए कंटेनर दैट होल्ड मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स। नाउ मूविंग इनटू कलेक्शन के टाइप्स, कलेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। यू कैन सिंपली सी इट से हियर, कहीं पर को भी इन एवरी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम इफ यू आर सीइंग, इफ यू आर सीइंग स्क्वायर ब्रैकेट्स तो वो कंसीडर्ड होगा लिस्ट में। लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेयर पोजीशन मैटर्स। अब इस आप सोच रहे होगे कि भैया कौन सी पोजीशन। लेट अस assume कि आई एम गिविंग यू अ वर्ड, यहाँ इसको दे देता हूँ एम्प्टी पेज। एक मैं आपको लिस्ट देता हूँ, उसमें आपको बताना है कि कौन सी किसकी पोजीशन बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कोई भी लिस्ट को तो वी विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। सबसे पहली चीज ये नोट करनी है। नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बताओ जो फर्स्ट है, जो यहाँ पर को 1 लिखा है उसकी प्लेस क्या होगी इन कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर कुछ इसका ध्यान है तो किसी को पता है? यू कैन गाइस, इफ यू आर नोइंग तो यू कैन जी थम्स अप। हाँ बताइए। फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। या 100%, मतलब ठीक है। तो इफ यू आर नॉट नोइंग गाइस, तो इफ आई एम गोइंग टू टेल कि जीरो कैसे बोला इन्होंने, ठीक है, द करेक्ट आंसर वो जीरो। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द लॉजिकल बिल्डिंग ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी पहली सीढ़ी है जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बढ़ाती है, ठीक है। तो हियर यू विल बी लिस्टिंग आउट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज ए प्रोसेस वेयर यू हैव टू इंडेक्स, लाइक कंप्यूटर कभी भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम जीरो, लाइक यू कैन सी इट हियर, एलिमेंट 1, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी जीरो। और इफ यू आर गोइंग टू टेल कंप्यूटर की इसकी प्लेस क्या है, 1 की प्लेस क्या है, तो यू विल बी टेलिंग इंडेक्स, इंडेक्स 0 इज देयर। इज दैट फाइन? गाइस नहीं समझ में आ रहा तो आई एम रिपीटिंग, कुछ भी है पूछ लीजिए, बिकॉज योर पेपर इज वेरी मच नियर, परसों को पेपर है, ठीक है। तो लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेयर पोजीशन मैटर्स, ठीक है। सीक्वेंस कैसे डिनोट होता है? पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी जितने होंगे। Also, you have to note it down. List is a changeable, which I can modify in between. I can add element, I can remove element in between. ठीक है। Also, list can allow duplicates. Like 1, 2, 2, 3 list allow करती है duplicates को. Is that fine? Also, you can check out here the notations. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है, ग्रेड्स है 92, 88, 95, 88, 76, तो द पोजीशन विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं इसमें। लिस्ट सबको समझ में आ गई? और कभी भी इफ यू आर चेकिंग तो लिस्ट विल बी काइंड ऑफ कहाँ से देखी जाएगी, विद ए स्क्वायर ब्रैकेट। मूविंग इनटू टपल। टपल क्या होते हैं? टपल इज ए इम्यूटेबल और ए अनचेंजेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस, काइंड ऑफ लिस्ट ही होती है बट इसका डिनोटेशन अलग होता है। लाइक लिस्ट क्या क्या चीज थी, आई विल बी आस्किंग एट द एंड कि इन सब के बारे में डिफरेंस बताएगा हर कोई, ठीक है। तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सब नोट डाउन कर लेना।
टपल इज ए इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है कि वो अनचेंजेबल है। अरे ऑर्डर्ड है सीक्वेंस का, ऑर्डर्ड सीक्वेंस वो तो छोड़ दो, टपल इज अनचेंजेबल एंड वो मॉडिफाई नहीं हो सकती इन बिटवीन। ठीक है, इसमें भी यू कैन चेक इट कि टपल आल्सो अलाउ डुप्लीकेट्स, और इसका रिप्रेजेंट कैसे होता है इन ए राउंड ब्रैकेट्स। जैसे लिस्ट का स्क्वायर में होता था तो इसका राउंड ब्रैकेट्स में होता है, एवरीथिंग इज सेम, बट इतना ही होता है कि ये चेंजेबल नहीं होती और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है राउंड ब्रैकेट। वही मूविंग टू सेट, आई गेस एवरीवन इज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कोई मेरे को सेट की डेफिनेशन बता दो प्लीज। collection of data. या पर हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, कोई मतलब एनीवन? curly braces in a curly Curly braces. braces. या 100%, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नॉन डुप्लीकेट्स एलिमेंट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। फाइन, तो जो सेट होता है वो एक उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इन टपल और इन लिस्ट हम लोग पोजीशन देखते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज देखते हैं, बट सेट में कोई चीज अनऑर्डर्ड रहती है, उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर वी डोंट नीड। नो डुप्लीकेट एलिमेंट, कोई भी सेट इज ए काइंड ऑफ यूनिक अनऑर्डर्ड एलिमेंट। डेफिनेशन ही पता होगी कि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ ये इसके बाद एग्जांपल्स है जो कि आपको तो समझ में आ गया है सेट क्या चीज होती है। तो एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू सी, सेट को कभी भी रिप्रेजेंट करोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फाइन, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एक बार थम्स अप या थम्स डाउन किसी को नहीं समझ में आया। ना ओके, मूविंग इनटू द फोर्थ पार्ट जो कि डिक्शनरी है। भाई मतलब जो भी पढ़ रहे हो ना, इसको इन चार चीज को बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, बिकॉज इट इज नॉट फॉर द कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल में तो आएगा ही आएगा पाइथन, पाइथन ऑल्सो इट विल बी देयर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। तो व्हाट इज अ डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की पेयर वैल्यूज वेयर की मैप टू वैल्यूज। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी में दो वैल्यूज होती हैं, सीधी सी सिंपल सी चीज। एक तो की वैल्यू होगी जो कि यूनिक होगी। लेट सपोज हमने कोई स्टूडेंट्स का डेटा समझाया, ठीक है, डेटा पकड़ा, डेटा पकड़ने के बाद उसमें से नेम, हर लाइक एक स्कूल में दो नेम के बंदे नहीं हो सकते। लेट सपोज होने के लिए हो सकते हैं बट इट्स इम्पॉसिबल। या लेट सपोज रोल नंबर पकड़ लो, ठीक है, तो द की वैल्यूज आर अनऑर्डर्ड एंड दीज आर यूनिक, की वैल्यूज आर यूनिक, नो डुप्लीकेट आर अलाउड। और जो वैल्यूज होती हैं, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो द वैल्यू कैन बी चेंजेबल, वो डुप्लीकेट है, द थिंग्स कैन बी फाइन। तो डिक्शनरी ये होती है, और रिप्रेजेंटेशन इज कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट, तो देखो लिस्ट, या केविन, केविन एनी डाउट्स? हेलो, या केविन गौतम यू कैन गो अहेड। Sir, actually, I have a doubt in dictionary, sir. या Sir, is like a dictionary is similar to structure. डिक्शनरी सिमिलर टू, The structure. see, first of all you have to understand the structure of dictionary. See, firstly it will move under curly braces, fine, and Yes, sir. जैसे fine, for example in the example you can see there is a key value and a pair value. Key value Okay, named sir. as Rahul, Ritika, Priya, and the values which are the marks which are denoted as 92, 89, 92. Values can be duplicate. You can simply go with, take a student data of your class, roll numbers are different which will come under key values, and the marks can be same, so they will cover under values. Is that fine? Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Yeah. Yeah, Ajay,
like I will be describing list in more depth, because अभी नहीं करूँगा, because it's kind of कि अभी आप उतना पढ़ो जितना आपको रिक्वायर्ड है, फाइन। बिकॉज इफ यू आर मूविंग एक ही टॉपिक के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो इट विल बी नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज परसों को पेपर है। इट्स इट फाइन? आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक और बार लिस्ट क्या चीज होती है, बट दीज आर द थिंग जो कि हम एक बार बता देता हूँ, ठीक है। लिस्ट इज अ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। सब ऑर्डर रहते हैं जिसकी पोजीशन हम लोग देखते हैं फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। एक लिस्ट पकड़ लो, नेम 5 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 5 के बीच के नेचुरल नंबर गो एंड टेक, ठीक है। इन दैट इट अलाउज डुप्लीकेट, इज दैट फाइन? डुप्लीकेट को अलाउ करेगा। एंड पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। और कभी भी इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग इन लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, ठीक है। इज दैट फाइन अजय? या वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि एक आता है सिंगल इक्वल्स टू और एक आता है डबल इक्वल्स टू। कैन एनीवन एक्सप्लेन? किसी को पता है? इफ यू आर ए पाइथन स्टूडेंट और ए कंप्यूटर साइंस किसी ने पढ़ी हो, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं हम टू असाइन वैल्यूज, एंड डबल इक्वल्स टू कंपेयर देम। या थैंक यू सो मच, 100%, ठीक है। तो सिंगल इक्वल्स टू इज फॉर द एलिमेंट। लेट अस सपोज मेरे को x की वैल्यू 10 रखनी है, वी हैव टू टेक ए वैल्यू x इज इक्वल टू 10, तो वी विल बी असाइनिंग int x इज इक्वल टू 10, तो वो हमेशा ही x की वैल्यू 10 लेगा। और इफ एग्जाम्पल वी हैव टू असाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो वो क्या करेगा कि हमेशा ही जो इनका एडिशन है वो उसकी वैल्यू को 10 के इक्वल्स रखेगा। इज इट फाइन? फॉर द कंपैरिजन वाला पार्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, ऑपरेटर्स, तो यू कैन गो इन दैट ऑल्सो। मूविंग इनटू लिस्ट ऑपरेशन, मूविंग इनटू द लिस्ट ऑपरेशन, कंबाइनिंग लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट 1 है हमारे पास और एक लिस्ट 2 है। अगर हमको कंबाइन करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज डबल इक्वल, डबल प्लस, जिसका नेम होता है कॉन्केटिनेशन। द प्रोसेस इज नेम्ड एज कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मीन्स अगर हमें दो लिस्ट को अगर ऐड करना है, ठीक है, द फाइनल आउटपुट इज दिस, दिख रहा होगा। आई गेस माई स्क्रीन इज विजिबल ना? ITMBS कम्युनिटी, बताओ सर। Yes, yes, visible. फाइन। तो अगर हमें कोई भी दो लिस्ट को इफ यू हैव टू ऐड, तो वी विल बी यूजिंग प्लस का साइन, डबल प्लस, विच इज नोन एज कॉन्केटिनेशन। फॉर रियल एग्जाम्पल वी विल बी मूविंग, लाइक आपकी स्कूल में क्लासेस लगती थी, यू हैव अ क्लासेस इन योर स्कूल। तो मॉर्निंग में यू हैव मैथ्स एंड फिजिक्स क्लास, आफ्टरनून में यू हैव केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आप बोलोगे कि आई वांट ऑल क्लास का, पूरी क्लासेस का रिजल्ट चाहिए ऑन डे मंडे, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, मॉर्निंग क्लास प्लस प्लस आफ्टरनून क्लास, प्लस प्लस का डिनोट कर रहा है कॉन्केटिनेशन, ठीक है। लेंथ, अब लेट सपोज एक लिस्ट दे रखी है आपको 10 20 30, अब आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हाउ यू विल बी फाइंडिंग लेंथ? कहीं पर को इफ यू आर गेटिंग LEN तो वो लेंथ को डिनोट करता है। लेंथ इज कि कितने एलिमेंट्स आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है। इज इट फाइन? Yes. अब आती है शॉर्टिंग की एल्गोरिथम। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग पता है किसी को क्या होती है? किसी भी चीज को शॉर्ट करना। इट्स एग्जांपल शॉर्ट, शॉर्टिंग, शॉर्ट। वी आर, इफ यू आर नोन टू इट आई वुड बी रिक्वेस्टिंग। या सृष्टि? Arranging the words in the ascending or descending order. या 100% फाइन, आई थिंक। या Shruti, sorry if I'm pronouncing that Sorting. wrong.
Sorting is basically like, separating elements in on the basis of some condition. Yeah, you can go with that also, but the actual definition of the sorting is arranging elements in a ordered kind of way. You can say, for example, two conditions are there for arranging, ascending or descending. ठीक है, किसी भी लिस्ट को, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट इज गिवन नंबर्स बिटवीन 1 to 5 और उसको मैं कुछ भी दे देता हूँ, लाइक 1 3 2 4, उसको हमें शॉर्ट करना है, तो वी विल बी यूजिंग शॉर्टिंग मेथड्स, अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट? नाउ मूविंग इनटू इंसर्टिंग शॉर्ट, ठीक है, ये तो इट्स काइंड ऑफ, ये मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब वाला चीज, तो यू कैन गो एंड सिंपली रिवाइज द थिंग, बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, original list is 42819, right? It is a step-by-step process. Insertion sort. The three sorting are there: insertion sort, bubble sort, and merge, जो कि main है, important है, fine. तो जो insertion sort होती है उसको हम how we denote it. Let's suppose we have a list 42819. So first we will be comparing 4 with 2. ठीक है? There will be the first step जो कि हमने 4 को पकड़ लिया, 4 को हमने अपना किडनैप कर लिया है, ठीक है? Then we are, हमने किडनैप कर लिया, बट जो और एलिमेंट्स है 4 के बाद हमें 2 मिला, तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन करा, तो 2 हमें अच्छा लगा, हमने 2 को आगे डाल दिया, फाइन. दिस इज द सेकंड प्रोसेस. अब यू नो कि हमें इट्स काइंड ऑफ कि 2 हमें मिल गया है, 2 सबसे छोटा ही होगा, बट 1 कब आएगा वो आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है? देन ये कंपेयर करेगा 4 को 8 से, फाइन. 4 को 8 से करेगा तो कुछ कंपैरिजन नहीं आएगा, इट विल बी टेकिंग 2 4 8. देन इट विल गो विथ 1, 1 के साथ वो स्टार्ट करेगा कि कंपैरिजन, 1 8 से करेगा छोटा ही है, 2 से करेगा छोटा ही है, 4 से करेगा छोटा ही है, तो इट विल बी कमिंग एट 1 2 4 8. समझ में आ रही है नहीं आ रही है सॉर्टिंग वाली चीज, इंसर्शन ऑफ, गाइस? ठीक है, ऐसे ही करके वो सभी चीज एक बाय एक करके प्रोसेस टेक करता है एंड इट क्रिएट्स अ फाइनल आउटपुट. वाई इंसर्शन सॉर्ट? अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस है कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है? और इसकी एफिशिएंसी भी इस काइंड ऑफ थोड़ा स्मॉल डेटा सेट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अपनी क्लास का डेटा सेट, तो इट इज काइंड ऑफ वो. अब आती है वेरिएबल्स एंड एक्यूमुलेटर्स. वेरिएबल्स किस किस को पता है? गाइस, आर यू नोटिंग डाउन ना सभी चीज? वी हैव 12 मेंबर्स, सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, सभी कर रहे हो ना? Yes. हाँ, तो वेरिएबल्स, कोई किसी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है, तो दे कैन एक्सप्लेन. Whose value can change with the time. They are basically containers that store values. या फाइन, ठीक है. तो वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ कोई भी नंबर, जैसे हमने लिस्ट में, इट इज स्टोर्ड इमीडिएटली, इमीडिएट वैल्यूज. फॉर एग्जांपल लिस्ट में हम कोई भी चीज स्टोर कर रहे हैं, तो वैल्यूज कह सकते हो आप, अल्फाबेट्स कह सकते हो, कुछ भी चीज है, ठीक है? तो इट्स काइंड ऑफ वेरिएबल. अब बात आती है एक्यूमुलेटर्स की. कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम में सी, फॉर एग्जांपल इफ यू विल बी सीइंग द पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है? पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा होगा कहीं पर को सम इज इक्वल टू 0, हर जगह लिखा रहता है सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये चीजें लिखी रहती हैं. इफ यू हैव मतलब किसी ने गौर करा तो ये चीज, फाइन. तो द थिंग इज, जो सम है, सम बाई दे हैव यूज्ड, तो सम का मतलब होता है एक्यूमुलेटर्स, जो कि यूज्ड होते हैं, ठीक है? इन चीजों में क्वेश्चन आता है. अब फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल होगी या फिर डबल्ड होगी, वो एक्यूमुलेटर्स आते हैं, फाइन. तो या सृष्टि है, सृष्टि, Can you please explain variables again? या फाइन. Variables, what are the variables?
Variables are, you can simply say, variable is a name given to a memory location in a program where we are storing. For example, we are taking int age is equal to 20. Fine. int denotes integer, जो कि हम कहेंगे this is a kind of data type. But age क्या है? The thing why we are writing age is a kind of variable name. ठीक है, जिसकी हम we are taking a value 20, जिसकी हमने value store करी 20. Fine. So the thing is variable. Let's Yeah, suppose okay, thank you. in any program, if you are seeing x, y, z, 2, 3, 4, these things, so it is a variable. Week 5, I guess सभी को clear है. Are you getting the things? Week 5 completed, guys. भैया शॉर्टली सब ओवरव्यू कर लेते हैं ना वीक 5 का। हाँ, PYQ. नहीं नहीं, एक बार शॉर्टली सब मतलब वन शॉट टाइप वीक 5 कर लेते हैं ना 5 मिनट में, मतलब क्या क्या करें। हाँ, done. अरे जो बोलो. It's on you कि guys, you have to take the session or you have to make it थोड़ा interactive by opening your mics. ठीक है. I will be speaking till डेढ़ 1 से 2 घंटा. It will not be a kind of, आपको भी नींद आने लगेगी, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग तुम कर सकते हो ये चीज. ठीक है. तो वीक 5 में कलेक्शंस हैं. कलेक्शंस आर द कंटेनर्स दैट होल्ड मल्टीपल डेटा एलिमेंट. फाइन. मूविंग इनटू, वही चेक कर रहा हूँ साहिल पांडे. वीक 5 आर कलेक्शंस एंड लिस्ट. ठीक है. और कलेक्शन एंड लिस्ट को हम ज्यादा करते हैं. कलेक्शन क्या होता है? किसी भी डेटा सेट को मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है कलेक्शन. ठीक है. अब आता है टाइप्स ऑफ कलेक्शंस. कलेक्शंस के अंदर कितने टाइप होते हैं? कलेक्शन के आप 4 टाइप पढ़ते हो. पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, तीसरा होता है सेट और चौथा होता है डिक्शनरी. होने के लिए और बहुत, वी हैव मोर देन दिस, बट वी हैव टू, दीज आर द 4 की एलिमेंट्स. इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ लिस्ट, प्लीज गो अहेड. सही. यस. Okay, so list is basically an ordered sequence of element which are denoted by square brackets, and we usually denote them position. We also do positioning of the elements in the list with 0, 1, 2, and 3, and in the list position also matter of the elements in it. Fine. Also, one point to note it down, the list is a changeable. Fine. Thank you so much, Srishti. Now moving, सबको समझ में आया ना लिस्ट गाइस? हाँ भैया. मूविंग इनटू द नेक्स्ट टपल. ठीक है. टपल क्या चीज है गाइस? आई वांट कि कोई एक्सप्लेन करे. Tuple टपल is basically list, but it has we cannot modify it. It is immutable. हाउ टू And रिप्रेजेंट ए plus लिस्ट? plus हाँ, टपल सॉरी. to represent tuple we use you know mm, square brackets is for list, but for tuples we use rounded brackets, kind of a rounded brackets. I don't हाँ, know. फाइन. मेक श्योर, हाँ 100%. ठीक है. मेक श्योर कि यू हैव टू गो एंड लर्न दीज थिंग्स. फाइन. आर यू गेटिंग ना गाइस? समझ में आया सभी को? भैया, और टपल में जो पोजीशन होती है वो 0 से चालू होती है या 1 से चालू होती है? 0 से ही होती है इसमें क्या? भी नहीं, इसमें भी 0 से. देखो, कंप्यूटर इज ए लैंग्वेज जहाँ पर को वी यूज काइंड ऑफ 0 और 1 लैंग्वेज ही समझता है. यू ऑल नो. फाइन. तो उसमें भी जितनी भी इंडेक्सिंग होगी ना, इंडेक्सिंग कभी भी आप देखोगे तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3. 0 से स्टार्ट होती है. अगर आप लास्ट से कर रहे हो, ठीक है. अब लेट्स सपोज आपने बोला कि मेरे को चुल आ रही है थोड़ी, तो मैं लास्ट से 76, 88 करके करता हूँ. तो यहाँ से क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगी, ना कि 0 से. भाई मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग से करा, इसका इन्वर्स करोगे तो इन्वर्स में तो ये आएगा ना, एलिमेंट्स विल बी 76, 88, 95, 88. अब वो -1 करके स्टार्ट होता है.
यू कैन से इट 1 करके भी, ठीक है। Okay. तो सी, हेलो, या, तो देखो, अगर आपको बैकवर्ड से देखना है 76 को, आप बोलोगे कि मेरे को 76 की पोजीशन डिनोट करनी है, तो उसको आप डिनोट करोगे -1 से। -1 80, 76 की वैल्यू होगी, 88 -2 की वैल्यू होगी। फाइन। नाउ मूविंग इनटू सेट। पार्थ, आप पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सेट एक्सप्लेन प्लीज, इफ यू नो। अ, हाँ, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें, और वो करली ब्रैकेट से भी डिनोट होता है, जिसमें डुप्लीकेट्स हम यूज नहीं कर सकते, सारे वैल्यूज यूनिक होते हैं सेट में। फाइन, सबको समझ में आया ये चीज भी। इसका कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस भी बेसिकली यूज। नाउ मूविंग इनटू द फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट, व्हाट इज अ डिक्शनरी। कोई बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है डिक्शनरी, तो यू दे कैन ओपन द माइक, माइक इज योर्स। It's a key value pair या, where the key must be unique while the values can be changed. 100%, थैंक यू सो मच। इफ आई एम गोइंग कि डिक्शनरी इज अ की पेयर वैल्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से यूज होता है, वी यूजुअली डिनोट फ्रॉम द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फाइन। सुसैन, आर यू गेटिंग इन हिंदी? सॉरी फॉर द थिंग, आर यू able to understand in Hindi? Not really, but I'm able to follow when you speak English. Ah, fine, sorry for that. Okay. To combine list, what we use? MCQ question. To combine list, what we use? We basically use concatenation. Fine. The process of concatenation. And to find length, we use len, which will find the length of the list. For example, 1, 2, 3. The 3 elements are there. So length of the list is 3. Fine. Now the fifth topic is what is shorting. I would be requesting किसी को shorting बताए तो shorting बताइए in a detailed manner. Sorting is arranging a list in either ascending or descending order. Yeah, 100%. Thank you. Fine. So sorting is a process of arranging element in a basic order. For example, ascending or a descending order. In this, we insert. There are following sorting algorithms, which covers insertion sort, bubble sort. Bubble sort is not in your syllabus अभी के लिए. Insertion sort is kind of important. ठीक है. Insertion sort is a process which take place step by step. Right? These are the things. But if you are going to take the original list is 42819. The step one we will be taking 4 as 1. Right? The 5 steps will be there.
Yeah, sorry for the thing, guys. थोड़ा सा interruption was there. Hello, I'm audible. Yes, sir. Yes, we- Fine. So if you are getting the things की sorting कैसे है, sorting का algorithms वगैरह. Now moving into variables and accumulators. Variables. Variables are the values जो कि हम store करते हैं किसी भी जगह पे. For example, like कोई भी नंबर है, ठीक है, लेट अस सपोज int x is equal to 10, so variable x will be the x is a variable there. Is that fine? And the accumulators are, for example, in any program like in your pyq also you will be getting कि कहीं पर को sum is equal to 0, double equals to 0, the things are accumulators, initialized to be 0. फाइन, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं. कभी भी तुम देखोगे इफ यू आर गोइंग विथ सम और स्क्वायर या फिर कुछ भी, तो यू विल बी गेटिंग पहले जीरो, फिर उसके बाद एडिशन स्टार्ट करोगे. इज दैट फाइन? या ठीक है. वीक 5 कंप्लीटेड, सभी को रिवाइज हो गया. नाउ मूविंग इनटू वीक 6. अभी हमने जैसे पढ़ा डिक्शनरी. डिक्शनरी इज लाइक ए फोन बुक जिसमें एक की वैल्यू होती है. की वैल्यूज आर योर नेम एंड वैल्यूज कैन बी अ नंबर. फाइन. लेट्स सपोज एक स्टूडेंट डेटा सेट लेते हो जिसमें आपको मार्क्स चढ़ाने. यू हैव टू गो इनटू मार्क्स. यू विल बी चेकिंग आउट द रोल नंबर्स क्योंकि रोल नंबर्स आर द यूनिक वैल्यूज. ठीक है, रोल नंबर्स कैन बी सेम. फाइन. तो द की वैल्यूज विल बी रोल नंबर एंड द फोन नंबर्स विल बी काइंड ऑफ द की वैल्यूज विल बी their marks. Like two students marks can be same. Is that fine? The same thing goes here also. You can take a screenshot of this also. What is a dictionary and how? What are the key properties? I have told you. Key properties क्या होती हैं? Like key can be unique. Each key maps to exactly one value. ठीक है. एक की वैल्यू की हमेशा exactly एक ही वैल्यू आएगी. Access to key, not a position. ठीक है, ये चीजें होती हैं. Is that fine? डिक्शनरी सभी को पता होगा. आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एक बार रियल वर्ड एग्जांपल का भी वो ले लेना. इफ यू आर, एक डिनोटेशन आती है एम्प्टी डिक्शनरी की. अगर आपको कोई भी चीज एम्प्टी खाली दिखाना है तो आप वहां पे वो कुछ लिखेंगे नहीं, खाली ब्रैकेट्स बना दो डिक्शनरी के कि क्योंकि कंप्यूटर कैन असाइन कि भाई जो भी खाली वैल्यू है वो डिक्शनरी है बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स, जो भी कर्ली ब्रेसेस है. इट कैन बी एम्प्टी डिक्शनरी. इज दैट फाइन? एम्प्टी डिक्शनरी डिनोटेशन. Yeah, one common mistake is there कि to avoid is कि value is equal to marks unknown students. Fine, you have not to do. For example, in quiz 2, your mark like your questions will be like, for example, give me output of this question, give me output of the thing. Fine, you have to go and check the thing. And the correct value is you have to go firstly with key value, then the value assigned to the thing, and else if else statements. Do you know statements? किसी को पता है statements क्या होती है जो कि हम प्रोग्राम में यूज करते हैं? हेलो. हाँ, anyone can go with like guys, one favor from my side, from your side. Should I explain you the difference between dictionary and list? या पता है या किसी को No. पता? If you are getting, so you can open a mic and you can explain each चीज. List versus dictionaries. One list has square bracket while dictionaries have curly braces. Lists are changeable, like they can be changed and duplication is allowed. But Yeah, when it 100%. comes to
Yeah, dictionaries are key value pairs. Yeah. Yeah, Srishti. Oh, okay, so in the list, it's basically like ordered sequence of element, but in dictionary, we have key value pairs, and one of the main difference is that list in list position matters, and in dictionary, it is we have unordered key names, and the values can be duplicated, whereas the keys are unique. And we usually denote list by square brackets and dictionaries with basically key value pairs. That's it. Yeah, 100% correct. Thank you. Thank you so much, Srishti. Yeah, IIT and BS community. Correct. One more point was that dictionary we can get random access for any key value, but in list we have to always start from the beginning. Like for reaching highest term, we need to go through I minus one terms, then we will reach. But in dictionary we can get a random access to any key value pair. Yeah, 100%. Thank you. Fine. तो you all are getting कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हैं डिक्शनरीज के, को how to check, how to see the dictionary and how to tackle the questions. Fine. I will be going with the things like all the questions will be in quiz 2, all the questions will be MCQ based. Fine. You have to only check the certain criteria how to do the thing. Fine. Moving into week 7. Week 7, what is matrix? Matrix is a 2D table with rows and columns. M as row and N as column. In mathematics 1 also you have studied matrix, I guess. There is a matrix chapter. Fine. So Here rows are in denoted. maths one, it's not started yet. Oh, okay. So I guess if you are a maths student, a 9th 10th में देखा होगा कहीं ना कहीं matrix. So I will be explaining. Matrix is a 2D table, ठीक है, where rows are represented as M and columns are represented as N. M into N ratios. Fine. Now visualization कंप्यूटर में विजुअलाइज कैसे करोगे? Only for the computer thing, हाँ. Indexing starts from zero. यहाँ पर कोई भी चीज है तो हमने बोला था indexing starts from zero. Here it denotes column 1, column 0, 1, 2, 3, row 0, 1, 2. Fine. So visualization you can check it out here. Now how to note? What are the notations to note a matrix in a question? Here the notation will be matrix, rows, bracket, column. Fine. लिस्ट के जो भी हाउ टू रिप्रेजेंट लिस्ट, लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो नोटेशन इसका यही है. इफ आई एम गोइंग विद एग्जांपल, मैट्रिक्स का एग्जांपल मैट्रिक्स 1, 2. अब इसमें चेक करोगे, यू विल बी गोइंग मैट्रिक्स 1 रिप्रेजेंट रोज एंड सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम. आई वुड बी रिक्वेस्टिंग याद कर लेना, 1 रिप्रेजेंट रो एंड सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम, 1 रिप्रेजेंट रो एंड सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम. Right? So the answer will be 70. You can check it out here. ठीक है. So these are the things that you will be noting out and the question we will be checking out. ठीक है. अभी I am taking इसको थोड़ा सा in a speed and graphs वाला thing also. We are going to study in questions. अभी तक किसी को कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई तो guys, you can go ahead and tell. Hello, I'm audible. किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो बता दीजिए. या सृष्टि. In the matrices, like where there was an example, there was this where you assigned the value of 17 row and column. Can you please explain it? Yeah, 100%. Here ना example. Yeah, this only. See how to denote a matrix and columns. Firstly, we have to understand rows. What are rows? Right? These are the rows.
row 0, row 1, row 2. Is that fine? Then moving into columns. What are the columns? These are the column 0, column 1, column 2, column 3. Is that fine? Now the question says matrix 1, comma 2. I will be reading it as 1, comma 2 because 1 bracket 2. Is that fine? So 1 डिनोट रो, जो भी डिनोटेशन है, फर्स्टली यू विल चेक कि रो का क्या है, रो वन यू विल टेक रो वन, पूरी रो ले लो, फाइन, एंड द इंटरसेक्शन बिटवीन, इनके बीच का इंटरसेक्शन यू हैव टू गो, एंड कॉलम्स की वैल्यू है 2, कॉलम 2 की वैल्यू है यहाँ पर 70 तक आएगी, 70 में दे विल कंक्लूड, लाइक वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे पे. इज दैट फाइन? तो द वैल्यू इज कमिंग 70. Oh, okay. Thank you. Anyone having more doubts, so you can simply ask. Guys, how was your quiz one? कैसा गया था quiz one? I guess it was a qualifier, but what were the responses? Hello. Yeah, fine. So in quiz 2, there will be kind of 14 questions. ठीक है? First and second questions are like compulsory, यही चीज है. I'm going and outing the question. ठीक है? Firstly, you have to go and take yes. Secondly, you have to go and click useful data has been mentioned या जो भी करना है. Fine. Moving into question number 3. Question number 3, firstly go and read कि हमने क्या करना है. There is a list given a is equal to 3, 8, 15, 6, 10, 5 और उसको हमने रीड आउट करना है. एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन v की वैल्यू हमने लानी है, v इज इक्वल टू 3,5. फाइन. अब हमें कंडीशन को चेक करना है. एक बार क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इज यूज्ड हियर. ठीक है, इंडेक्सिंग का हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद वर्क करेंगे. ऑल्सो देयर इज अ क्वेश्चन पेपर समरी, सॉरी फॉर द थिंग. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर समरी विच इज AI जनरेटेड क्वेश्चन समरी. यू कैन चेक इट आउट हियर कि लिस्ट और डिक्शनरी से एक क्वेश्चन बनेगा और सूडो कोड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. ठीक है, लूप, डेटा प्रोसेसिंग, फ्रीक्वेंसी काउंटर, यूनिक एलिमेंट्स. ऑल्सो इन फ्रीक्वेंसी काउंटर हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि भाई इसका हम लोग एक काइंड ऑफ easy way how to solve the frequency counter questions. Fine. Moving into this question. ठीक है, इसमें हमसे बोला है कि हमें जो b, we have to enter the value of b is 3,5. Now you will be doing indexing in question number in a is equal to 3, जो भी वैल्यू हमें लिस्ट में दी है. 3 की वैल्यू इज 0, 8 की 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इज इट फाइन फॉर एवरीवन ना? तो चेक द कोड. नाउ मूविंग इनटू चेक द कोड. व्हाट कोड सेज? किसी को कोड देख के कुछ समझ में आ रहा है? हेलो गाइस, यू कैन सिंपली रिएक्ट. नहीं आ रहा तो इट्स नॉट ए काइंड ऑफ कुछ भी. प्राइम नंबर पता है आपको क्या क्या होता है? प्राइम नंबर्स, एक चीज बताऊंगा मैं आपको. यहाँ पर कोई यू कैन गो एंड टेक अ चेक ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. 8 नहीं हो सकता, 15 भी है बट नहीं, 15 है नहीं है, नहीं है शायद. हाँ, 6 इज नॉट, 10 इज नॉट. ठीक है, तो इसका जो बिहेवियर है इट्स काइंड ऑफ ए प्राइम नंबर चेकर. चेक. ठीक है, इसमें look at the option correctly. Firstly, the things will be look at which option correctly identifies 3 and 5 as true and 8, 15, 6, 10 as a false. ठीक है, तो देखो j is equal to 3.
3 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी विल बी स्टार्टिंग 0 1 2 3, हमें 2 वैल्यूज चाहिए तो हमने स्टार्ट करा 0 1 2 3। इज दैट फाइन? हेलो। देन मूविंग इनटू फ्लैग इज Yes, इक्वल sir. टू ट्रू, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जो भी हमने आइडेंटिफाई करा है, लेट्स सपोज जो भी हम वैल्यूज लानी है 3 और 5, जब हमारा आउटपुट विल बी देयर इट विल बी कमिंग फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद वो मैच करेगा। ठीक है, अब देखो ट्रू तक समझ में आया भाई, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू इज रिटर्न हियर गाइस। आई वुड बी रिक्वेस्टिंग प्लीज मेक थोड़ा सा इंटरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस आर थोड़ा कि इसमें ट्रिक्स वी विल बी यूजिंग। ठीक है, भैया फ्लैग मतलब क्या है, कंडीशन है मतलब? देखो फ्लैग इज ए काइंड ऑफ, यहाँ पर को उन्होंने डाल रखा है, चेक द थिंग है। ठीक है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट सपोज आप यहाँ पर को एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। फ्लैग की सिंपल सा, मतलब सिंपल सा चीज ये देखो कि आपको कंडीशन देनी है, कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में 3 और 5 की वैल्यू होगी ट्रू, नहीं तो और जितनी वैल्यूज होंगी वो सब होंगी फॉल्स। ठीक है, जब आप पहली कंडीशन दोगे, कंडीशन में ये चेक करोगे कि फ्लैग, पहला तो आपको j इज इक्वल टू 3 समझ में आया सभी को? हाँ ठीक है, j इज इक्वल टू 3 समझ में आया, उसके बाद फ्लैग ट्रू, क्योंकि कंडीशन इज की हमारे अगर 2 एलिमेंट्स होंगे वो ट्रू आएंगे, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चेक इट आउट कि देखो j इज इक्वल टू 2 खत्म हो गया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, j इज इक्वल टू 2 यहाँ से, फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। समझ में आ रही है चीज? एलिमिनेशन राउंड भी खेल सकते हो बीच बीच में। इज दैट फाइन? अब हमारे पास बचते हैं j इज इक्वल टू 3 के और j इज इक्वल टू 3 के दो क्वेश्चन। अब इसको हम चेक करेंगे कि भाई क्या चीज चल रहा है। ठीक है, फ्लैग इज ए वेरिएबल जो कि हमने ट्रू करना है, क्योंकि कोई भी आउटपुट आए, आउटपुट जो हमारा आना है 3,5 उसको हमें लाना है ट्रू। अगर वो ट्रू नहीं होगा तो फ्लैग का वैल्यू आएगा फॉल्स। हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया है, देखो पहले से हमने इनिशियलाइज कर दिया है कि जो भी आंसर आएगा ट्रू आएगा, अगर वो ट्रू नहीं आता है तो वो नीचे जाके वैल्यू चेक होगी और वो फॉल्स में जाएगा। इज दैट फाइन? तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सेकेंड, नहीं, हाँ सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बताओ? अच्छा सॉरी, हाँ नहीं सॉरी सॉरी, जे इज इक्वल टू 3 नहीं, जे इज इक्वल टू 2, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 तक आएगी और हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, दो ही एलिमेंट्स चाहिए जो कि पॉइंट आउट करना है। अगर यहाँ पर कोई लिखा रहता है 3,5,8 या फिर 3,8,5, तो यहाँ पर को आता है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो द आउटपुट विल बी जे इज इक्वल टू ट्रू, और फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू वाला समझ में आया? सॉरी फॉर द थिंग जो मैंने आपको पहले बताया, जे इज इक्वल टू 3। हाँ हाँ हाँ। नाउ मूविंग इनटू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, मूविंग इनटू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज Hello, द वैल्यू sir. ऑफ रिजल्ट? या Sir, there are few questions in the chat. अरे सॉरी भाई, या अजय देखो फ्लैग का मतलब क्या है, फ्लैग मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे ना, फ्लैग इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि हमने यहाँ को असाइन करा है कि जो भी मेरी वैल्यू आएगी, देखो ए हमारी एक लिस्ट है 3 8 15 6 10 5। ठीक है, बी एक हमारी एम्प्टी लिस्ट है और हमें प्रिंट करवाना है 3,5। अब आप यहाँ पर को ले जाओगे कि भाई मेरे को दो एलिमेंट्स प्रिंट कराने, एक वेरिएबल दिया j इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद आप कंडीशन अप्लाई करोगे दूसरे वेरिएबल के साथ, यहाँ पर को फ्लैग यूज करा है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आपको ये चीज है कि चेक करनी है कि जो भी नया शब्द होगा ना, देखो इंटीजर्स, डिक्शनरीज, ये चीजें अगर आपको आती है तो जैसे फ्लैग है, फ्लैग इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि उसने असाइन करा है। एट द एंड देखो रिटर्न फ्लैग लिखा है, हर जगह रिटर्न फ्लैग लिखा होगा, तो ये वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है बार बार। इज इट फाइन? एक्स वाई जेड फ्लैग ये चीजें रिटर्न होती है।
इसका डाउट था अजय भाई। अजय हेलो। देखो कौन सी कंडीशन में कि अगर हमारी दो ही एलिमेंट होंगे तो वो ट्रू आएगा, नहीं होंगे तो वो फॉल्स आएगा। अब जो दो एलिमेंट्स है हमारे पास 3,5 है, तीसरा पहले में है, पांचवा लास्ट में है। प्राइम नंबर चेकिंग की कंडीशन डाल दो। भैया यहाँ पे पहला वाला जो मतलब करेक्ट आंसर है उसमें पहला वाला फ्लैग ट्रू है और जो दूसरा वाला फ्लैग है वो फॉल्स है। तो दूसरा वाला फ्लैग फॉल्स क्यों है अगर हमें दो एलिमेंट्स लाने हैं तो उसमें जिसका रिमाइंडर 0 है। देखो पहली चीज है कि देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 15 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 5 है। ठीक है, इतनी चीज पता चल गई। हाँ कभी भी कोड को, जैसे जो भी एग्जीक्यूशन होता है, रुको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमने कोई भी वेरिएबल असाइन करते ना, ये देखो जैसे एरोज होते हैं, एरोज कैसे काम कर रहा है। उसने पहले गया, इनिशियलाइज करी, एक वैल्यू चेक हुई, चेक हुई, चेक हुई, डिसीजन हुआ, उसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए जाएगा वो। पहले एक करेगा, फिर ऊपर जाके दूसरी करेगा, रिटर्न कर रहा है ना। रिटर्न का मतलब ही है कि वो ऊपर जाके चेक करेगा। जब आप प्रोग्राम लिखोगे पाइथन या इन चीजों में, तो तब देखोगे कि हाँ भाई, एक वैल्यू एक टाइम पे एक ही वैल्यू ली जाएगी, पूरी लिस्ट तो हम ले नहीं सकते। IITM-BS कम्युनिटी समझ में आया। Yes, sir. फाइन, मूविंग इनटू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। एक बार इस कोड को पढ़ो, क्या बोलता है कोड। या साहिल, आई एम गोइंग टू, एक बार रुको मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो लीजिए, या साहिल। नहीं, मैं मुझको आ गया। मैं उसके लिए बात कर रहा था कि वैल्यू लेके आप कर दीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे नहीं समझाना ना। हाँ वैसे कर, अगर आप करते तो जल्दी उसको समझ में आ जाता, ये मैं कह रहा था। और द थिंग इज ना, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट अप करके देख सकते हो। पहले j = 3 लो, 3 की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होगी, नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे करके नहीं चेक इट नहीं, एक आउट कर सकते प्राइम वाला लीजिए और एक उसके बाद वाला जो 3 8 और वो वाला था, बस हो जाएगा। दो में ही तो समझ में आ जाएगा नॉर्मल, अगर देखा जाए तो। हो। ओके, स्क्रीन दिख रही ये वाली। देखो ये जो पूरा थिंग है ना कि कैसे क्या चीज हो रही है, अगर दिख रही है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके वहां को एनालाइज करना मीट के बाद कि भैया ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है, एक बार इसका फॉर देखो, पहले x = 3 लिया उसने, लूप डज नॉट रन, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्राइम चेकिंग की वो डाली है, कंडीशन डाली है। ठीक है, वो उसका ट्रू का ट्रू है। अब उसने चेक करा 5 को, चेक डिवीजर 3 and 4, नन डिवाइड्स 5, तो फ्लैग रिमेन्स ट्रू। ठीक है, फ्लैग इज ए वेरिएबल, ये हमेशा याद रखना। अब 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा ही, तो वो फॉल्स हो गई। 15 डिवाइडेड बाई 3 तो इक्वल्स टू 0, ये भी फॉल्स। 6 भी फॉल्स, 10 भी फॉल्स। तो आंसर विल बी 3,5। अब समझ में आया हेलो गाइस। आ गया भैया, पूरा समझ में आ गया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें वो आउटपुट चाहिए। ठीक है, आउटपुट उसने डेटा दे रखी है 4 1 4 5 2 1 3 4 6। सीधा सा सिंपल सा काम ये है कि देखो 4 की रिपीटेशन है तो वो 4 को स्किप कर देगा और जो भी एलिमेंट्स है उसको आगे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखो एक डेटा दे रखा है 4 1 4 5 2 1 3। ठीक है, तो सीधा सा काम ये है, अगर वो एक यूनिक एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले में अगर आप 4 लेते हो, 4 की वैल्यू लेते हो, ठीक है, 4 की वैल्यू लेते हो तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा। यूनिक में एलिमेंट है तो वो लिस्ट में डालेगा। ठीक है, अरे इसमें नोट पैड नहीं है ना, नहीं तो मैं नोट पैड, एक सेकंड। हाँ तो देखो सीधा सा सिंपल सा चीज है, बट यू हैव टू सी। ठीक है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में क्या चीज है, पहले वो 4 है, 4 1 5। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो सकता है कि हमें बीच के एलिमेंट को हटाना है। ठीक है, जितने भी अनकॉमन एलिमेंट्स है उनको हटाना है। क्वेश्चन समझ में आया, बट विद द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको आप एप्लीकेबल देखना कि आपके हिसाब से एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। एक मिनट देना, ठीक है मेरे को, आई एम राइटिंग इन नोट पैड। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि अगर कोई वैल्यू है, आपको डेटा सेट दिया तो क्या था, 1 4 5 2 3। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन था, द सॉल्यूशन इज कि इफ यू हैव ए नंबर यूनिक एलिमेंट तो यू हैव टू ऐड। अगर अनकॉमन है तो इसको स्किप करो, कॉमन है तो स्किप करो, अनकॉमन है तो लिखो। पहले में वो 4 को लेगा, इट विल टेक 4। ठीक है, कहीं पर को भी नहीं हो रहा तो वो ऐड करेगा लिस्ट में। इज इट फाइन? उसके बाद वो चेक करेगा 2 को, नहीं 1 को चेक करेगा, सेकंड एलिमेंट इट विल टेक 1। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया ये चीज? आ रहा है भैया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर चीज देखनी है। ठीक है, आप यू विल बी गोइंग इनटू आउटपुट। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया, एक सेकंड, हाँ, तो गो इनटू आउटपुट और आउटपुट को मैच करना है, प्रेजेंट करो। मैच करोगे तो उससे उस चीज से हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा, देखो कोई भी चीज को ऐड करनी है अगर वो अनकॉमन नहीं है, और ऐड कहाँ करनी है, फर्स्ट में ऐड करनी है, क्योंकि रिजल्ट इज इक्वल टू आइटम प्लस प्लस दिया है। प्लस प्लस का मतलब वो आगे पे ऐड करेगा। इज इट फाइन? तो जैसे 4 है, 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए। इंक्रीमेंट का साइन है प्लस प्लस, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट का साइन होता है प्लस प्लस। अब जैसे रिजल्ट से पहले प्लस लिखा है, ठीक है, रिजल्ट से 2 बार 2 टाइम्स द प्लस इज गिवन इन फ्रंट, तो यू हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इन फ्रंट। अगर रिजल्ट प्लस प्लस लिखा रहता तो उसके बाद करते। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। देखो हमारे 2 एलिमेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 एलिमेंट बचे जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब क्या एक्चुअल आंसर क्या होगा, एक्चुअल आंसर विल बी दिस, पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 1 चेक करेगा, 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 4 चेक करेगा तो 4 इज अनकॉमन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को गाइस? हेलो, अब नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए? आंसर नहीं समझ आया भैया, मतलब
वो सब समझ आया कि अगर होगा तो हम मतलब जो एलिमेंट अनकॉमन है उसे नहीं लेंगे, मतलब जो अनकॉमन है उसे लिस्ट करेंगे, जो कॉमन है उसे छोड़ देंगे। तो फिर उस तरह देखो से आंसर तो सी आना चाहिए ना, बट आंसर ए कैसे आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा। प्लस प्लस एक्स ये होता है, फिर एक्स प्लस प्लस होता है। ठीक है, एक लिस्ट गिवन हमको 1 4 2 3 4। ठीक है, ये चीज दिख रही है। एक प्लस प्लस एक्स है, एक एक्स प्लस प्लस है, और एक लिस्ट हमें दी है 4 2 3 4 2। ठीक है, हमने क्या करना है, द क्वेश्चन से वहां पर को आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, क्वेश्चन में लिखा था प्लस प्लस रिजल्ट लिस्ट। रिजल्ट लिस्ट एक अनकॉमन चीज है जो कि ऊपर डिफाइंड है, एक वेरिएबल है रिजल्ट लिस्ट जो कि ऊपर डिफाइंड है। अब उसको आप कंपेयर करो यहाँ वाले चीज से, कौन सा वाला है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें डिफाइन हो रहा है प्लस प्लस एक्स वाले में, समझ में आई? ये वाले में डिफाइन हो रहा है प्लस प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये चीज लिखे इसका मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो आगे को ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले लेंगे एक लिस्ट 4। ठीक है, एक लिस्ट लेंगे 4। पहले हम लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने एलिमेंट लिखा 4। ठीक है, 4 को ऐड कर दिया। इतना समझ में आया 4 तक गाइस? यस भैया। ठीक है, अवनी और क्या था, साहिल, हेलो। हाँ, ठीक है, तो अब हम जाएंगे चेक करेंगे 2 को। ठीक है, 2 भी यूनिक है, तो 2 कहाँ पर को ऐड होगा, 2 आगे को ऐड होगा ना कि पीछे को। अगर आगे को प्लस प्लस लिखा है तो आगे को ऐड होगा, पीछे को प्लस प्लस लिखा है तो पीछे को ऐड होगा। फाइन। अब उसके बाद वो तीसरी चीज चेक करेगा, एक एक करके चेक करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा वैल्यू। अब ये 3 को चेक करेगा, 3 भी यूनिक है। ठीक है, अब आता है 4। 4 पूरे उसमें यूनिक नहीं है क्योंकि वो पहली बार आ चुका है। इतना समझ में आया होगा? और 2 भी यूनिक है, तो इसका जो आउटपुट होगा 3 2 4 होगा। इसमें कोई इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लगाना है तुमने। ये तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट रहेगा इसके साथ, इसके साथ प्लस प्लस एक्स वाला। अगर एक्स प्लस प्लस होता तो इसका आउटपुट क्या रहता, इसका आउटपुट रहता आपका, एक सेकेंड, इसका आउटपुट रहता 4 2 3। समझ में आया? अब आया नहीं आया? सॉरी फॉर द थिंग गाइस। चल, अब समझ में आ रहा है गाइस? हेलो। हाँ भैया आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी काउंटर इज ए काइंड ऑफ जो कि हमेशा ही पूछा जा रहा है और इसको कर लेना। इसमें आप देखो कैसे, आपने लिस्ट दी है ए बी ए सी बी डी, ये चीजें लिस्ट दे रखी है, एक लिस्ट दे रखी है ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अब आप जाओ ऑप्शन में, कुछ मत करो, जाओ ऑप्शन में। ए की वैल्यू 4 है, इसका मतलब वो काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की ए की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर चेक करो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। 4 एज आर गिवन, वी हैव 4 एज गिवन। तो यहाँ वी हैव एलिमिनेटेड 1, ए के एलिमिनेट हो गया। फाइन। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू गो इन आउटपुट। आउटपुट इट इज ए काइंड ऑफ ट्रिक जो कि आप यूज कर सकते हो। फाइन। अब बचते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट। बी की वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स बी इज रिपीटेड, बी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम्स बी इज रिपीटेड। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब हमारा बचा ए एंड डी। ये चीज समझ में आई गाइस? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या डिफरेंस पड़ रहा है इन दो ऑप्शन में, फर्स्ट एंड डी वाले ऑप्शन में क्या डिफरेंस पड़ रहा है। सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 1 है, और इसमें 2 है। तो फाइंड आउट डी। डी कितने हैं, वी हैव 2 डी, तो द आउटपुट विल बी 1। क्यों? समझ में आया होगा, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है सिर्फ। यू आर गेटिंग 4 नंबर्स इतने में।
हाउ मेनी मिनट्स वी हैव यूज फॉर दिस क्वेश्चन टू सॉल्व? मैक्सिमम 1 मिनट जाएगा हमारा. इज दैट फाइन? 30 सेकेंड. अरे भाई 1 मिनट भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन गिव 1 मिनट भी, 30 सेकेंड भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं. फाइन. मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें हमें करना क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. किसको समझ आया क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करना. सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, हिंट दे रहा हूं मैं. जहां लिखा है एट्थ लाइन से गौर कर ले जाओ. इफ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन, इफ ए इज इक्वल टू आर्टिकल. इसको देख लो एक बार. और जो मैंने पहले बताया था इक्वल टू का साइन क्यों यूज होता है, सिंगल इक्वल टू का क्यों यूज होता है, ये यहाँ पर कोई डिफरेंस क्रिएट करता है तुम्हारा. ठीक है. तो अब यहाँ पर को देखो, अगर आपने गौर करा होगा तो उसमें लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन. इसका मतलब क्या है कि नाउन दैट कैन कम इमीडिएटली आफ्टर ए आर्टिकल. ठीक है, 3 ही लग रहा है. चलो मैं आपके ऊपर डालता हूँ, 3 ही लग रहा है. कैसे लगा 3? पहले उसने कंडीशन दिया है, तभी मैं एट्थ लाइन में आई वॉज लाइक एट्थ लाइन में गौर इसलिए करो. द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन कि पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन. अब जो भी लिस्ट होगा उसमें चेक करेगा द लिस्ट ऑफ नाउन्स दैट कम इमीडिएटली आफ्टर ए आर्टिकल. पहले नाउन को फाइंड करेगा, फिर आर्टिकल को फाइंड करेगा. समझ में आया ये वाला? पहले कंडीशन जो दी है, पहले अगर ए दिया है तो ए को सॉल्व करो, बी दिया है तो बी को सॉल्व करो. पहले ए दिया है, ए को सॉल्व करो, उसके बाद बी दिया है तो बी को सॉल्व करो. तभी आई वाज सेइंग कि एट एंड नाइन लाइन में एक बार ध्यान दो. समझ में आया ना गाइस? प्लीज रिएक्ट. भैया एक बार दोबारा समझाओ इसी क्वेश्चन को. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा कि टेबल क्या है, टेबल बहुत बड़ी है. ठीक है. ठीक है, यू हैव टू गो अपवर्ड और टेबल में जो भी वर्ड्स हैं वो चीज चेक करनी होगी. इज दैट फाइन? बट हम वी आर यूजिंग ए ट्रिक, और ट्रिक से हम काम कर रहे हैं. देखो टू कंडीशंस आर गिवन. कंडीशन में सीधे से ध्यान देना है. एट्थ एंड नाइन कंडीशन में एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन एंड इफ ए इज इक्वल टू आर्टिकल. तो उसके बाद वो ऐड करेगा, एल प्लस प्लस एड एक्स इज ए वर्ड. तो पहली कंडीशन वाज नाउन. पहले हमें नाउन चेक करना है. तो नाउन चेक करना है तो द लिस्ट ऑफ नाउन. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल को चेक कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये भी आर्टिकल को चेक कर रहा है. समझे? और नहीं? हाँ जी. ठीक है. अब आपके पास बचते हैं 2. बिफोर तो करेगा नहीं. बिफोर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एल प्लस प्लस एल इज ए. प्लस आ रहा है. ठीक है, एल प्लस प्लस हाँ. जो कि मैंने आपको अभी डिफाइन करा था, तो वो आफ्टर करेगा. तभी वो इमीडिएटली आफ्टर कर रहा है. वो एक्स प्लस प्लस एक्स वर्ड से पहले आ रहा है. एल प्लस प्लस है ना, इसी वजह हाँ से एल प्लस, हाँ आर्टिकल एल प्लस प्लस. देखो देखो आर्टिकल देखो. जो आएगा, हाँ वो आगे आ जाएगा आर्टिकल, और नाउन बाद में आ जाएगा. यस. ऐसे ही है. ठीक है. थैंक यू भैया. फाइन. सबको समझ में आया गाइस? किसी को और डाउट? एक और कंडीशनल क्वेश्चन हियर. आई वुड बी रिक्वेस्टिंग गाइस, अब इसका करके दो. सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग, ओनली गो विद द कंडीशन. ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू जूम इट. थोड़ा सा स्क्रीन यू कैन जूम इट फॉर द थिंग्स. द कंडीशनल क्वेश्चंस आर आज टू मच, तो मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट यही अप्लाई कर दो भाई. लॉजिकल स्टेटमेंट, गो विद द लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड वर्क ऑन. चेक करो क्या कंडीशंस गिवन है एंड गिव मी द आंसर.
किसी ने सॉल्व करा? हेलो हेलो ईशा, व्हाट्स द आंसर? कैन यू प्लीज टेल? ऑप्शन नंबर Option 3. C. Okay, we are going with option number 3 लॉक किया जाए, and it's wrong answer. Sorry for that. If I will be requesting go with step by step method, ठीक है? Analyze the first loop. The first loop is while loop. While table 1 has more rows. Firstly, the loop is while, the second loop is if, third loop is if. Is that fine? Hello. See, the values are given. A की वैल्यू आपको गिवन है नीचे, B की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. यहाँ से वैल्यूज टेक आउट करो और यहाँ पर को ले जाओ, ऊपर को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Fine. The answer will be A is equal to number of cities where student score the lowest marks in physics. क्यों? क्योंकि you have to check it कि पहले हमें लोअर और इक्वल टू मार्क्स चेक करने हैं इन सिटीज. भाई, तो अगर आप इसको कंडीशन में, फॉर एग्जांपल इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन क्वेश्चन, इसको आप वैल्यूज पुट अप करते जाओ, वो आपका होते जाएगा. दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर इज द आंसर. ठीक है, ये मैंने थोड़ा ऊपर से बताया क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन क्वेश्चन और भी थोड़ा पॉसिबल है. या साहिल? आई थिंक एग्जाम्पल लेके करवा दीजिए, ज़्यादा सही पड़ेगा. तो भैया हाँ, फाइन भैया फाइन एक फाइन. शॉर्ट ट्रिक भी तो है कि अगर ए की वैल्यू अगर मिनिमम डी है, 0 डी है, तो क्या कहता है वो लोएस्ट मार्क्स स्टोर करेगा, और बी कोई किसी चीज की वैल्यू अगर मैक्सिमम डी है तो वो हाईएस्ट स्कोर करेगा. ऐसा शॉर्टकट भी मैं तो था. उसकी बात नहीं कर रहा हूँ उसमें. हाँ हाँ, हमको जो द थिंग डेटा इज ना सेट कि देखो देखो, आप दिया किसी रहा. मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको आंसर सही देना है. मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा दूंगा. ठीक है, एक सेकंड लीजिए. आप एक इसको डेटा सेट लीजिए, उसके बाद करा दीजिए. Okay. द थिंग इज ना कि क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा. लाइक सिटी तीन एक्स तीन वाई. तीन ही आप लीजिए, तीन ही स्कोर लीजिए आप, हो जाएगा. किसको? तीन ही स्कोर लीजिए डेटा सेट में से. डेटा सेट भी तो अरे ऊपर है. स्कोर डेटा सेट जो स्कोर वाला है उसमें से तीन ही आप मार्क्स लीजिए, और मतलब अपने मन से लीजिए या फिर वहां से लीजिए, हो जाएगा. ठीक है, देखो जैसे इसके मार्क्स हैं, भुवनीश के फिजिक्स मार्क्स हैं 64 एंड नवीन के हैं 66. फाइन. और ये दोनों की सिटीज अलग हैं. यू कैन चेक इट आउट कि जिसके फिजिक्स के मार्क्स कम होंगे वो वहां पे को पहले लिस्ट आउट होगा. जैसे भवनीश के फिजिक्स में मार्क्स कम है और ये सिटी भी अलग डिफरेंट कर रही है इसकी. ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग चेक कर सकते हो. जैसे यहाँ पे को दो ही एग्जांपल दिया है, भवनीश और नवीन का. दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नवीन एंड भवनीश. ठीक, यू हैव टू पुट द वैल्यू. पुट नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे को एक बार डेटा सेट भी चेक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे को जो वैल्यू दे हैव गिवन उसको भी डाल के यहाँ देख लो. एक ए की वैल्यू तो हमेशा ही 0 रहेगी ना. ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 100. ए नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट स्कोर लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स बी. यही यही मतलब स्टेटमेंट देखो इसको प्रॉब्लम आ स्टेटमेंट रहा तो वो कंफ्यूजन है. देखो स्टेटमेंट, है. हाँ इसमें वही. भी आप एक चीज चेक करो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिटीज आ रहा है. हाँ ये फाइन, ये तो तो नहीं थर्ड हो वाला हो सकता. नहीं सकता है. हाँ नहीं हो सकता. ठीक है, अब आपको जाना है कि हाईएस्ट मार्क्स. अब अगर ए की वैल्यू 0 है तो भाई वो हाईएस्ट नहीं हो सकती, सीधी सी बात ये है. हम्म ठीक है, तो ये भी डिफर कर गया. अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी. yes, yes. समझे नहीं समझे? हाँ दो ऑप्शन बचा अब. ठीक है, अब आप चेक लोएस्ट करो मार्क्स. हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स एंड लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स. जो ए है उसके कितने मार्क्स हैं फिजिक्स में? लोएस्ट है, हाईएस्ट है? फिजिक्स में भी उसके लोएस्ट है. हम्म फाइन, तो वी विल बी टेकिंग आउट. तब हमने वी हैव टेकन द थिंग.
number of cities where students score lowest marks in physics and lowest marks in physics B and physics जो भी है. whatever, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. हाँ थैंक ठीक यू, है, थैंक यू, थैंक यू. फाइन. नाउ भरत सर कुछ बताइए. यस शिवेंद्र, कहाँ तक वीक कंप्लीट हो गया है? हाँ हेलो हेलो हेलो. वीक सारे कंप्लीट हो चुके हैं बट द क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे थे. ठीक ठीक, मतलब कितनी देर और एक्सटेंड हो सकता है सेशन? 10 मिनट्स 10 मिनट पूरा हो जाएगा. हाँ, आपने 2 घंटे ले लिए. अरे द थिंग इज ना कि वीक 1 से 8 थोड़ा बड़ा ही पड़ जाता है, तभी आई हैव लाइक वही. वो चल रहा है. सॉरी फॉर द थिंग. नहीं, बढ़िया है वो तो. ठीक, कोई नहीं, चलिए. ठीक, थैंक यू. ठीक है. नाउ इट्स काइंड ऑफ सूडो कोड क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सूडो कोड वाला क्वेश्चन है. अब देखो इसमें भी एक ट्रिक लगाई हो. मैं बता रहा हूँ कि इफ यू आर यूजिंग लॉजिक, अगर तुम पाइथन के स्टूडेंट हो तो ठीक है, अगर नहीं हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन गो एंड चेक आउट द लॉजिक. और जो 9 से लेके नीचे तक 16 तक के क्वेश्चन हैं अपने हिसाब से लगाओ. नहीं कहीं दिक्कत आ रही तो आई विल बी पुटिंग माई नंबर हियर. कहीं दिक्कत हो रही होगी तो यू कैन टेक्स्ट मी, डीएम कर सकते हो. ठीक है मेरे को. भाई एक बार थम्स अप इफ यू आर एग्रीड विद दिस. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि 9 से लेके ये सारे ही सूडो कोड वो होते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, तो अब वी आर मूविंग. डी एक डिक्शनरी है, देख सकते हो कि यहाँ पर डी एक डिक्शनरी है. वाइल लूप लगा रखा है. टेबल 1 हैज मोर रोज. अब शॉपिंग बिल के डेटा सेट में आप ऊपर जाओगे. शॉपिंग डेटा सेट के बिल में क्या है देखो, ये सारी चीजें हैं. आइटम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट. ठीक है, यहाँ आपको एनालाइज करा. एनालाइज करने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन में आए. क्वेश्चन में आपने बोला कि वी हैव टू राइट. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? वी हैव टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स सोल्ड बाय ए शॉप. मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम विच इज सोल्ड बाय ए शॉप हमें डिनोट करनी है. कैसे करोगे? चलो ऑप्शन आई एम गिविंग यू. इसमें कोई यूनिक, कोई काइंड ऑफ ये चीज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये. ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें. मल्टीपल चॉइस है तो यू कैन टेक 2 ऑप्शन हियर आल्सो. गो विथ इट. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. डिक्शनरी का क्वेश्चन है. आई एम रिपीटिंग, डिक्शनरी का क्वेश्चन है. थिंग गोज ऑन. मूविंग इनटू द ऑप्शंस. ठीक है, इफ एल्स. इफ के बाद हमेशा एल्स आएगा. मेक श्योर करो. देखो ऑप्शन नंबर 1 में इफ के बाद एल्स नहीं है तो हम इसको पॉइंट आउट करके बाहर निकाल देंगे. इसको बाहर खदेड़ के बाहर निकालो. ठीक है, फाइन. मूविंग इनटू द सेकंड ऑप्शन. इफ नॉट इज ए की डिक्शनरी कॉमा शॉप नेम. ठीक है, एल्स है. इफ के बाद हमेशा ही एल्स यूज होता है तो इट कैन बी ऑप्शन. इज इट फाइन? हेलो, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया क्यों? ठीक है, मूविंग इनटू द थर्ड ऑप्शन. क्या लगता है आपको थर्ड ऑप्शन विल बी राइट और नॉट? देखो सम क्वेश्चंस आर कंफ्यूजिंग. ठीक है, सम क्वेश्चंस आर कंफ्यूजिंग कि मल्टीपल चॉइस आते हैं बट ऑप्शन कैन बी 1 और 2. ठीक है, इफ आई एम गोइंग विथ फोर्थ वन ऑल्सो, फोर्थ वन इज रॉन्ग क्योंकि हमने यहाँ को पहले ही एक छोटे से ही पैराग्राफ में उसको डिफाइन कर दिया कि ये शॉप नेम है, उससे हमें मैक्सिमम की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो थर्ड में इस काइंड ऑफ इफ के बाद एल्स का यूज नहीं है. इफ एल्स स्टेटमेंट, ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यूज होती हैं. ठीक है, फाइन. गेटिंग वॉइस? आर यू गेटिंग? ठीक है, इफ एल्स. अब दूसरा, अब देखो ये वाला एलिमिनेट कर दिया हमने, ये वाला एलिमिनेट कर दिया और ये वाला एलिमिनेट कर दिया. सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमिनेट कर दिया हमने.
नाउ मूविंग इनटू सेकंड एंड फोर्थ में उसने पूरी लिस्ट निकालना है। हमें शॉप का नेम चाहिए, ना कि लिस्ट का नेम चाहिए, आइटम की लिस्ट का। इन द फोर्थ क्वेश्चन इट सेज एक्स डॉट आइटम लिस्ट। अगर मैं चेक करता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, कहाँ क्वेश्चन पढ़ लूँ। द फॉलोइंग सूडो कोड sold maximum number of unique item. कैरेट सीबी स्टोर्स एंड स्टोर बाजार, ठीक है। डेटा, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ सॉरी सॉरी, समझ गया। सॉरी फॉर द थिंग कि इफ एल्स वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, वो अभी मत देखना आप। पहले इसमें कंडीशन अप्लाई हुई है, वाई टेबल वन हैज मोर रोज। ठीक है, आपने जो ऊपर डेटा सेट देखा उसमें आपने यूनिक आइटम सोल्ड बाय ए शॉप है। ठीक है, यूनिक आइटम्स निकालने हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि देखो, इफ नॉट इज की डिक्शनरी डी। ठीक है, जो भी हमने आपको इसने डी इनिशियलाइज करा है एज ए डिक्शनरी को जाने एक्स डॉट शॉप नेम, फिर उसने इनिशियलाइज करा है डी एक्स डॉट शॉप नेम डिक्शनरी। अब वो एक एक करके आइटम चेक करेगा फॉर ईच आइटम इन एक्स आइटम लिस्ट, जो कि आइटम की लिस्ट होगी। अगर वो इंटू कर रहा है, देखो डी एक्स डॉट शॉप नेम इंटू आइटम्स इज इक्वल टू ट्रू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो लेंथ थी, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स फाइंड आउट करने थे। तो यूनिक नंबर हम फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉपर्टी से, डी एक्स कॉमा शॉप आइटम्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग थर्ड, सॉरी फॉर दैट राइट। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व करें अभी। मेक श्योर करना है कि गो विद द क्वेश्चन समरी। दिस इज अ वेबसाइट ऑफ क्विज प्रैक्टिस डॉट स्पेस। यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। PYQ यू कैन गो विद दिस, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। दिस इज द वेबसाइट लिंक आई हैव शेयर्ड विद यू। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। प्लस आई एम गिविंग नोट्स ऑल्सो फॉर द CT वाला, you can check it out this also। और किसी को if you are facing any doubt तो you can simply connect it in my LinkedIn on WhatsApp also। सीटी की थ्योरी में से भी क्वेश्चंस बनते हैं? yes थ्योरी में से भी? yes, the conceptual वाला पार्ट वाले क्वेश्चंस पूछ लेगा वो। Question 5। ईशा, what's wrong with question number 5? फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं Okay, नहीं थी। हाँ, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी काउंटर में आपको सिंपल सी ट्रिक लगानी है। देखो ऑप्शंस में क्या गिवन है, ए की वैल्यू उसने डिक्शनरी की पेयर वैल्यू। ठीक है, ए इज की वैल्यू एंड नंबर्स आर पेयर वैल्यूज। ठीक है, अब ए की वैल्यू उसने असाइन करी है 4। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कि फ्रीक्वेंसी काउंट है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि जितने बार वर्ड्स रिपीट हुए हैं। बी में ए की वैल्यू कितने बार, 4 बार रिपीट हुई है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हुई है। इस टाइप से यू हैव टू गो एंड टेक ए ट्रिक। हाँ, ओके, या फाइन। भरत सर हैं? हेलो। तो गाइस टुडे नहीं, वो थोड़ा सा लीव कर कंक्लूड दिया। हाँ, तो वी कैन कंक्लूड इट टुडे फॉर द टुडे वाला पार्ट। अगर कोई भी डाउट होता है, आई हैव शेयर्ड यू ऑल द थिंग्स। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल, व्हाट्सएप नंबर एंड द नोट्स वाला चीज, तो यू और कैन टेक ए न्यूमेरिकल स्क्रीन। क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए? न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं CT में, मैक्सिमम अरे यही आता है या तो। सारे ऑप्शन वाले आते हैं?
हाँ, सारे ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन के आते हैं, क्योंकि सीटी इज ए काइंड ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे को आपको कोई वैल्यूज फाइंड आउट। मतलब ग्रेडेड मल्टीपल असाइनमेंट्स में थे वे, हाँ मल्टीपल ग्रेडेड टाइप असाइनमेंट। देखो, जो मैंने आपको बोला ना, लेट सपोज स्टार्ट करना है, जैसे आपको कोई लिस्ट दी होगी, वन वन करके आपको यू हैव टू इनिशियलाइज द लिस्ट, उसके ऑप्शन पूछ सकता है वो सिर्फ, वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको कोई भी वैल्यू, लेट सपोज वैल्यू वन रखी है, आपको लिस्ट में वैल्यू 1 2 3 4 5 दी गई है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि एंड में क्या फाइंड आउट करना है, तो प्रॉपर्टी उसने सब चीज डिफाइन करी होगी, वहां से आपको फाइंड आउट करना होगा। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, नहीं तो फिर बहुत ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे। दिस इज द क्वेश्चन पेपर स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, ये अगस्त 2025 का था, अभी 3 परसों जो आया। अगस्त। हाँ स्टेटमेंट वाले के लिए कुछ जो स्टेटमेंट पूछते हैं उसमें। देखो, स्टेटमेंट वाले के लिए जो थ्योरी है, आई टोल्ड यू की लिस्ट वगैरह, इनके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जो भी चीजें हैं, इनके लिए थोड़ा सा वो करते हैं वो, भाई। और तो ट्रिक यूज कर सकते हो यार इसमें, अभी तक के ट्रिक कर सकते हो आप। वही ओके, एलिमिनेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उसमें। एलिमिनेशन ही कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। क्या हो जाएगा, क्या, एक बार रिपीट करना। कह रहा हूँ एलिमिनेशन से ही कर सकते हैं। अरे देखो, सीटी इज काइंड ऑफ जहाँ को आप इलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट्स में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट सीटी का मैं बोल रहा हूँ कि कर सकते हो, अगर थोड़ा भी दिमाग लगा। देखो, एक कोड में तुम हल्का सा दिमाग लगाओ, खुद ब खुद आंसर निकलता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब यही है। ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ए सब्जेक्ट जो कि अब तुम्हारी लॉजिकल बिल्डिंग है। जैसे कोई भी पेपर में, इफ यू आर चेकिंग कि कोई भी पेपर में दे यूज रीजनिंग वाला चीज है ना, इसको आप, हम्म। यू हैव टू टेक द पेपर एज ए रीजनिंग वाला पेपर, राइट। सबसे ज्यादा इसी में गलत होता है, फिर रीजनिंग में ही। कोई ईशा किस चीज की श्योरिटी नहीं है? क्वेश्चन करेक्ट होने के मतलब। नहीं देखो, करेक्ट होने का 100% श्योरिटी बन जाती है यार, वहां पर इफ यू आर गोइंग एंड थोड़ा लॉजिक लगा रहे हो तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक वो है। तो हमारे ऊपर है कि अगर समझ पाए कोड तो हो सकता है कुछ। वही चीज, ठीक है। तो सॉरी फॉर कंक्लूडिंग इट थोड़ा जल्दी, क्योंकि माय मिड सेम्स आर गोइंग ऑन इन माय ऑफलाइन कॉलेज। कल फाइन। भारत भाई बोल रहे थे कल मैथ का भी है। यस, मैथ्स का दूसरा कोई मैम लेंगी, जो कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल चल रहा है वो, ठीक है। टाइम पता है ये आपको? टाइम भी यही, एक सेकेंड रुकिए। ऑल्सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, ठीक है, इफ यू आर कोई भी मतलब, एक सेकेंड रुको, मैं टाइम बता देता हूँ। मैथ्स 1 है ना कल आपका? हाँ उसका टाइम क्या पता, अभी ग्रुप में डाल देंगे वो, ठीक। वो बोले कि टुमारो टुमारो का बोले हैं। अरे हो जा भाई। अरे ठीक है भाई, भैया मजा आया ठीक है, पढ़ के तो वो आपसे। सर बता देंगे। ऑल्सो इफ यू हैव मतलब थोड़ा सही लगा सेशन, तो यू कैन सिंपली अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो सर को दे सकते हैं, ठीक है, डीएस कम्युनिटी में आप डाल सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हो। फाइन। मजा मजा तो आया, बट जो मतलब थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं मतलब की वगैरह। हाँ, द थिंग इज ना कि मेरा भी खुद का, मेरा ऑफलाइन कॉलेज है, डुअल डिग्री स्टूडेंट, तो मेरा खुद का मिड सेम चल रहे हाँ तब। तो आप पूरा यहाँ ही आप रिकॉर्ड कौन कर रहा है? रिकॉर्ड कौन कर रहा रिकॉर्ड है? नहीं, अच्छा वो चलेगा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चले वही था। मतलब तो पूरा ही आप मतलब मैं उसी के लिए आया था कि लास्ट वाला जो हो जाएगा तो थोड़ा देखो, बहुत इट्स मतलब काइंड वही। ऑफ कि देखो, आपको एक श्योरिटी मिल चुकी है कि निकल जाएगा, बात यह है।
ठीक है, अभी एंड निकल टर्म के टाइम पे वी विल बी डूइंग एक सीरीज कर लेंगे बूट कैंप्स की, 3 से 4 दिन की सीरीज कर लेंगे जिसमें सारी चीज पढ़ा देंगे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर इस बार आप करिएगा तो 1 वीक पहले ही, हाँ 1 वीक पहले करेंगे टर्न डन। क्योंकि अब कल मैं ट्रैवल करूंगा यहाँ से, अब घर से जाना रहेगा एग्जाम सेंटर। तो कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से है कोई यहाँ? कहाँ से? उत्तराखंड उत्तराखंड। उत्तराखंड से आदित्य भाई हैं, मतलब है नहीं, यहाँ पे नहीं है, मतलब हैं। कोई नहीं। वो भी डुअल डिग्री है। अरे अजय भाई क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग का, क्वेश्चन देखो वही दिमाग में हल्का सा अंडरस्टैंडिंग। एक बटर बटर लगा के जाइएगा, हल्का सा दिमाग में, ठीक है, चिल मूड में एक गाना सुन जाइएगा बढ़िया से, आपको बैठे बैठे क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ भैया, पास तो हो ही जाएंगे। पास तो वही अरे जाओगे देखो भाई, पास के लिए, देखो पास पास होने के के लिए लिए आप पास की चिंता नहीं करो, पास तो आप वैसे भी हो जाओगे, बट द थिंग इज कि सीटी और पाइथन इन चीजों में आप नंबर ले सकते हो। हाँ ये तो है, ये मैं देखा हूँ भाई, क्योंकि मेरा भी मतलब 12th में पाइथन था तो आ जाते हैं नंबर। अरे आ जाएंगे गुरु, काहे चिंतित हो आप, मैं कह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा घी मक्खन लगा के जाइएगा घर से। तो दही खा के जाइएगा आप अजय भाई, आप दही खा के जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई। ऐसा ब्राह्मण, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, हो जाएगा आपका। अरे बहुत बढ़िया। हो तो जाएगा भाई, होने का तो मतलब पास तो हो ही सकते अरे हैं हम। हो तो वैसे ही गया है, मतलब वो क्विज 1 का बेस्ट ऑफ द 2 होता है ना, तो हो तो वैसे ही गया है, उसमें कुछ है नहीं, बट वही है कि लेकिन उसमें अगर ये बढ़िया से इनके, मार्क्स आ गए तो सीजीपीए अच्छा हो जाएगा, बाकी तो और क्या। हाँ तो सीजीपीए के लिए ही लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि पास तो हो ही जाएंगे भाई। पास तो हो ही जाएंगे भाई। अरे भाई लेकिन भगवान भरोसे नहीं भाई, पूजा वूजा करो, हो जाएगा। अरे हाँ भाई, फुल अब कल के दिन पूरा पूजा करूंगा, पढ़ाई तो नहीं अरे नहीं भाई 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 पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स होंगे आई गेस अगर सीटी है तो। मैथ के लिए हाँ नहीं कुछ, भैया, मैथ कर के लिए दूंगा। कुछ बता दीजिए अब। मैथ्स का मैथ में करेंगे मैथ्स यार, तो मैथ्स बस। का मेरा एक्सपर्टीज नहीं है सर, द थिंग इज कि मैथ्स नहीं मेरा मैं खुद, पूछ रहा हूँ करूँ क्या, मतलब मैथ में भी देखो बता पीवाई दीजिए। क्यूज कर लो, अब एक ही दिन बचा भाई, पीवाई क्यूज और थोड़ा सा रिवीजन कर लो टॉपिक्स। मुझे नहीं लगता कि मेरा इस बार मतलब मैथ में बेस्ट होगा, क्योंकि किया मतलब गए पा रहा है मेरा, लिमिट से तो ऊपर ही भाई जा रहा है बस सब। क्वेश्चंस कर ले यार, क्वेश्चंस कर ले, अब लास्ट के टाइम में तो थेरी मतलब, मेरे को जेई जब मैं कर रहा था, मेरे को एक तो पता है कि भाई लास्ट के टाइम में तुम थ्योरी पढ़ोगे तुम डूब जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस हम्म करो लास्ट के टाइम। ठीक है, ये हमारे डीएस गाइड सर आ चुके हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरीज होंगी फीडबैक्स होंगे इनको दे देना इनके डीएम में। Thank you, Karthik and Shivendra for your selfless अरे कोई effort. दिक्कत नहीं। अच्छा शिवेंद्र वाज रिकॉर्डिंग द सेशन? He was recording the whole session for 2 hours. ओके 2 hours। So, thank you both of you. Now you all may leave the session and send your doubts to your respective mentors. Thank you so much.